Hello. Am I audible and visible? इसमें दिक्कत है. I can't see you. Again? Hello. Hello. Hi. Am I audible? Yes, you are. मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी आपकी स्क्रीन दिख रही है. सर ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं. Hello हेलो everyone. सर. हेलो. इस बार किसकी स्कूल है? हेलो गाइस, मेरे को दोनों की स्क्रीन नहीं दिख रही है. बता रहा हूँ. अच्छा खैर हर बार ओशन के साथ होता है तो ठीक है. इसमें कुछ शायद अकाउंट का ही इशू चल रहा है. एक काम करना, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करना. हाँ. टाइम आ गया, लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया. ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से कोई इवेंट नहीं किया, आज कर रहे हैं. बिल्कुल एक्साइटेड है. फॉर द ओशन देन हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं. हम्म. ओके. हमारे पास तो अब ओशन की हेलो. आ गई. मेरे पे नहीं आ रही. खैर कोई नहीं. यस. थोड़ा सा लैग हो रहा है गेस ओशन आपकी तरफ से. 1 second. नहीं, यहाँ से क्लियर है. मुझे आ गया. आपके स्क्रीन थोड़ी सी लग रही है. अच्छा हो सकता है नेटवर्क इशू हो फिर. ठीक है. Let me know now. Yeah, it's better. Okay, so first we have Jaswant, the author of Shyamran, and second we have Shravan Malik for Anokha Bharat. Okay. Yes. First is Jaswant Panchal for Shamram. Yes. हाँ, और उससे उनको इनवाइट करने से पहले लेट्स हैव अ लिटिल टॉक. Yes. So We have enough time. exactly. So first of all, we should welcome our audience. We have number of people here. Hello everyone. Welcome to our next another exciting event live session. So we are starting today a literary week that we have to remember. Someone solo book Insta live series.
So in particular, this series we will have from divine devotion to silent resilience, from tales of mystery to reflections of identity. This week, Witness the Soul Behind the Script as Someone publication brings you an intimate series of live sessions with the solo authors whose words are now turning into legacy. These are not just book launches, these are journey of voices nurtured with ink and courage. Authors who trusted their truths and co-authored dreams with someone. Before we move on, let me welcome the co-host of this evening, Sachin sir and Ocean. So, hello everyone. कैसी हैं आप Thank you, दोनों? Martha. Hi. We are all good. How are you, Martha? I'm fine too. Excited. I'm very excited for this event. बिल्कुल. Great. Okay, so hello everyone. Yeah. Shall I go on? Yeah, sure, please. Hello everyone. This is Ocean. Welcoming you all. This is a big day as we are going to begin our exciting week. 6 books, 6 authors. Yes, we are all set to launch solo authored books. But before the launch, we are here to explore the hearts, hurdles, and the hopes of each writer of these amazing books. From Shamrang to Monica, Khamosh Awaaz to Anokha Bharat, and beyond. But before we move to our guests, authors tonight, and have a talk session with them, I would like to ask you, Sachin sir, why don't you share a little backstory of all these projects? As we all know, they are now about to launch after a long period. So tell us in brief how this journey has been as a publication head. So, thank you so much, Ocean. First of all, a very good evening, everyone. Let's talk about a bit backstory related to not for this project or related to all the things which we are going to launch on 15th of June. So first of all, for Shamrang, for Shamrang अगर हम बात करें जसवंत पांचल ये प्रोजेक्ट आई गेस मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमारे 1 से 2 साल के गैप में स्टार्ट हुए थे एंड ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस बहुत सारा डिले रहा, बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रॉब्लम, कभी कवर का प्रॉब्लम, बहुत ओवरऑल चीजें उस तरीके से चलती रही, बट ओवरऑल हमारे ऑथर्स का पेशेंस था जिस तरीके से उन्होंने हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए वेट किया रिलेटेड टू एवरी सिंगल डिटेल। इवन कुछ बुक्स में प्रॉब्लम ये हुआ कि आईएसबीएन आने में भी टाइम लग गया। बहुत सारे इसके अंदर ये रहा कि कवर डिटेल्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, करेक्शन का प्रॉब्लम था, इवन एक स्पेसिफिक टाइम के पास हमारे पास डेटा लॉस हो चुका था। बट स्टिल स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज ऑथर जो हमारे साथ जुड़े रहे। और श्यामरंग की स्टोरी की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ खास हमें करना नहीं पड़ा, बिकॉज जब उस बुक की एडिटिंग की बात की ना, जब मैंने उस बुक के अंदर देखा तो उसमें स्पेशली श्री कृष्ण की स्टोरी फ्रॉम जीरो टू एंड, किस तरीके से उनका महाभारत में क्या रोल रहा है, किस तरीके से उनका अगर हम बात करें उनकी बचपन की बात करें तो ओवरऑल एक गुजराती लिटरेचर के पार्टनर्स बहुत बहुत प्यारा है। बाकी हम जानेंगे तो प्लीज वेलकम our author Jaswant Panchal. Yeah, has he joined the live? Jaswant, please send the request to our host so she can help you. Yes. Yeah, we have the request. I guess you will inform me. ओके, तो जब तक हमारे ऑथर ज्वाइन कर रहे हैं पहले
श्यामरंग प्रोजेक्ट और अनोखा भारत, तो हमारे अगर हम बात करें ना, अभी हमारे पास 6 प्रोजेक्ट है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मोस्ट ऑफ आर स्टोरी बुक, जैसे अगर हम बात करें द डेस्टिनी रूल, या हम बात करें और अदर प्रोजेक्ट्स की, सो जसवंत पांचाल की स्टोरी है। हेलो बताएंगे बस। वेलकम जसवंत, हाउ आर यू डूइंग? हेलो सचिन भाई, गुड इवनिंग। आवाज आ हेलो रही है प्रॉपर जसवंत, आपको? वेलकम हेलो वेलकम हेलो वेलकम टू सम। हेलो, जसवंत आवाज आ रही जसवंत आवाज है? आ रही आपको है? आवाज- हेलो, हेलो, हाँ सचिन भाई, आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही मेरे है को आ रही आपकी है आवाज। आपकी आवाज। सो आपको हमारी आवाज सही से आ रही है? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं? नहीं आ रही, कंप्लीट आ रही है, बराबर है। ओके ओके, सही है। तो हेलो जसवंत सर, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपकी बुक के लिए, श्याम रंग। एक्साइटेड होंगे आप उसके लिए? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। ओके, so उससे पहले बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू टू द आवर ऑडियंस. So Jaswant Panchal is a mechanical engineer from Ahmedabad, Gujarat. He started his writing practice around to 2018 with the first composition Bage Baithi, which is in Shringar Rasa. Krishna Rasa and Shringar Rasa are his favorite subjects to write around, and Shyam Rang is his first ever book to be published. So again, we welcome you, Jaswant sir. Congratulations. So आप थैंक यू। बताएं कैसा लग रहा है अब आपको? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरी जो फर्स्ट किताब है जो पब्लिश हो रही है, मैंने अराउंड 2028 में शुरू किया था लिखना, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट पब्लिकेशन के लिए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात। Great. Hi Jaswant, welcome and हाय, congratulations on the book. थैंक यू। जसवंत, शुरुआत करते हैं आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में। आप बताइए प्लीज कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। अराउंड 2028 में मैंने लिखने की शुरुआत की। हमारे गुजरात के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक है श्री साईराम दवे। उनको सुनने के बाद मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कुछ लिखूं, और उनकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया है। उनको पढ़ने के बाद ही इज माई फर्स्ट इंस्पिरेशन अबाउट टू राइट द समथिंग। Okay, that's great. आपने इंस्पिरेशन का बताया, और वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि एक बुक पब्लिश करनी चाहिए? एक हाँ, अराउंड 2022 में मुझे इच्छा हुई कि कृष्ण भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, तो वो खोज कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैंने ढूंढा। बहुत सारे बुक्स को रीड किया, वहां से इंफॉर्मेशन मिली, तो वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कुछ लिखा, लाइक अ पोयम, गजल्स, और वो सब मिला के मैंने एक बुक क्रिएट की जिसका नाम रखा श्याम रंग। Okay. तो जैसा कि आपने बताया, तो श्याम रंग जो खुद में एक टाइटल है वो बहुत ज्यादा एक तो गहरा है और बहुत ज्यादा जज्बात रखता है। अब वो बात चाहे आपके भगवान प्रेम की हो या उस तरह के जज्बात जो आपको प्रेरणा देते हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो इसका टाइटल है वो उसकी क्या खासियत है? श्याम रंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, और उसमें श्याम मतलब कृष्ण भगवान का नाम है, और कृष्ण के 2.5 अक्षर और प्रेम, और वो पूरी जो जीवन शैली है वो सब मिला के मैंने उसका टाइटल रखा है श्याम रंग। बेसिकली जो हमारे कृष्ण भगवान है उसके उनके ऊपर है। अच्छा, तो पूरी हम किताब यही कहें कि आपके भगवान प्रेम के ऊपर है, उसका पूरा जो थीम है वही है। बहुत खूब। हाँ, जो पूरा थीम है वो वही है, कृष्ण भगवान के ऊपर। जी। बहुत ही प्यारा थीम है श्याम रंग, कृष्ण जी के ऊपर। और जसवंत, हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस था सारी पोएम्स को एक साथ लाने का, एक पूरा कलेक्शन बनाने का, ये प्रोसेस कैसा रहा? जैसे कि आपने बताया कि आपने काफी किताबें पढ़ी और भी रिसर्च करी, थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। नहीं, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हर
जब भी मैं कुछ पढ़ता था, कुछ रिसर्च करता था, तो कुछ नया जानने को मिला कि ऐसा हुआ है कृष्ण भगवान के जीवन में। और उनका जो जीवन में, उनके जीवन पे से बहुत कुछ सीखने लायक मिला। थोड़ा और कुछ आपको कुछ याद हो, कहानी याद हो, कोई मोमेंट याद हो जब आप ये सारी पोएट्रीज इकट्ठा कर रहे थे और एक बुक के रूप में इसे लाने वाले थे? यहाँ तो वैसे तो अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। श्योर। तो ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही? आप बताना चाहेंगे थोड़ा क्या? बुक से रिलेटेड? ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही बुक से रिलेटेड? एक बुक को बनाने में काफी समय लग जाता है, कभी महीने कभी साल लग जाते हैं, तो वो कैसा रहा? नहीं, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है संबंध के साथ, और बेसिकली भी फर्स्ट ही बुक है, तो बहुत ही अच्छा रहा है। सचिन भाई ने बहुत हेल्प की है और बहुत ही अच्छा रहा पूरा एक्सपीरियंस। सचिन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें ने बताई कि जसवंत एज एन ऑथर, हम जानना चाहेंगे जसवंत एज अ पर्सन आपकी किस तरीके से आपकी जो चीजें हैं लाइफ के अंदर, आप इस शब्दों सचिन उसमें भाई, क्या आपकी वो आवाज चीजें हैं कट जो हो रही आपको है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ। तो ये जो स्टोरी आपने बताई कि जसवंत एज अ राइटर, जसवंत एज अ ऑथर, आपने बताया कि आपका लिखने का तरीका है, आप किस तरीके से चीज आगे प्रोसेस करते हैं। तो जानना चाहता हूँ आप किस तरीके से अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके अपने शब्दों को देखिए बाहर कैसे इंसान बेटर। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है राइटिंग के अलावा वो कैसी है, पर्सनल हाँ, लाइफ कैसी राइटिंग है? के अलावा मेरी लाइफ में मैं अभी बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। और मैं पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और साथ में लिख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। तो लिखने आपकी के क्या अलावा इंस्पिरेशन रहती है? या गो ऑन माजिया। हाँ, मैं यही मालूम करना चाहिए थी कि इंस्पिरेशंस क्या रहती हैं जब आप लिखने बैठते हैं। तो जो कोई एक ख्याल आता होगा, जैसे आपने भगवान प्रेम का कहा, तो उसके लिए भी आपको कोई चीजें एकदम से हिट करती होंगी कि हाँ अब मुझे लिखना चाहिए। वो चीज क्या होती है? बेसिकली राइटिंग के लिए जो भी थॉट्स आते हैं वो बाइक चलाते वक्त बहुत अच्छे आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वही मैं लिखता हूँ बेसिकली। बाकी एक जगह शांत बैठकर भी सोच के लिखा जा सकता है, और बाइक चलाते वक्त बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं मुझे। अच्छा, लिखने के अलावा आपकी कोई और रुचियां जिसमें आप अपने आप को बिजी रखते हो, हॉबीज? लिखने के अलावा मैं बुक्स रीडिंग करता हूँ। अच्छा, कोई खास तरह की बुक्स? बुक्स बेसिकली गुजराती है, बहुत सारी गुजराती बुक्स मैंने पढ़ी है। उसमें से श्री अंकित भाई त्रिवेदी की एक बुक है लिखित अंग राधा, वो बहुत अच्छी है और वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, सही है। तो जैसे कि आप अब खुद एक ऑथर बन गए हैं, आप अपनी पहली किताब पब्लिश कराने जा रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी अब आपका बनता है कि आप मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाहर अब आपके जो इतने लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होगी? मोटिवेशनल यही है कि अगर आपको मन में है कि मुझे कुछ लिखना है, तो जो भी मन में आए वो पहले लिखो, रफली लिखो, उस पर मेहनत करो, तो बेसिकली आप अपना जो भी गोल है वो अचीव कर सकते हो। सही है। आप अपनी पूरी राइटिंग जर्नी को अगर एक शब्द में कहना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द है, बहुत ही अच्छी रही है, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज ओवर टू अच्छे से आ यू। रही है और वीडियो में कोई ग्लिच? क्या सॉरी सचिन भाई? इंटरप्शन, मेरी आवाज तो सबको सचिन भाई, जी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। अभी ठीक है? बोलिए। हाँ, बेटर। सबसे पहले तो मैं कुछ भी पूछने जा रहा हूँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जा रहा है। आई होप कि अभी ठीक है सब कुछ। यहाँ नेटवर्क का इश्यू है शायद।
जी अभी गुजरात में है आवाज आ आप रही भी? है। बोलिए। दोनों ठीक है आवाज? हाँ, अभी ठीक है आवाज? जी हाँ जी। आ रही है, बोलिए। ओके। तो जसवंत जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी आप अहमदाबाद में, राइट? हम्म। हाँ मैं अहमदाबाद में हूँ वो भी। हाँ, अहमदाबाद में है। श्री कृष्ण की अगर हम बात करें ना, तो हर गुजराती के में मतलब बातों में सबसे पहला वर्ड जय श्री कृष्णा होता है, राइट? आवाज आ रही है? हाँ कम आ रही है जी आपकी आवाज आवाज। सचिन भाई। वेट अ मिनट। ठीक है। बोलिए। ओके। तो मैं कह रहा था कि गुजराती कल्चर को जिस तरीके का है, ट्रेडिशन इस तरीके का है कि हम जब भी हाय हेलो जो होता है ना, कि वेस्टर्न कल्चर में हाय हेलो नमस्ते, हमारे हिसाब से हम लोग जय श्री कृष्ण से स्टार्ट करें। सुनाई दी? हेलो। हाँ सचिन भाई। मुझे आई मेरी थिंक। आवाज माजिया ओशन आपको क्लियर है? नहीं, आपकी जी जी आवाज कट आवाज हो आ रही रही। है। आप बोलिए, सवाल करिए आगे, मैं फिर पूछती हूँ उनसे। सवाल गया ही नहीं। आधा सुन, आधा आया है, आप आगे उसको ओके कंप्लीट सो करिए। ओके, वेट, अब क्लियर है सब? क्लियर है। आवाज क्लियर है? कोई धीरे तेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी नहीं अब नहीं। ठीक है, बोलिए। ऑथर एंड से जसवंत आपको क्लियर है? हाँ बोलिए आप। हेलो? हाँ बोलिए बोलिए सचिन भाई। क्या कि जिस तरीके से आप लोग आपने जो लैंग्वेज चुनने के लिए श्याम रंग को गुजराती में, राइट? हम्म। तो क्या आपके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये सिर्फ उसका गुजराती कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर गुजराती कल्चर में आपने आप पढ़े बड़े ये चीज है जो कि ओवरऑल उस लैंग्वेज से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी पोइट्री राइटर को तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर वो जो गुजराती कल्चर बहुत, मतलब हम कह सकते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपनी जड़ें भूलकर आगे चले जाते हैं इंग्लिश में पोइट्रीज और उस तरीके के कल्चर में जाके, कहीं ना कहीं लोग हिंदी को मिस कर देते, अपनी नेटिव लैंग्वेज को मिस कर देते। तो कहीं क्या ये आपका भी मोटिव है कि गुजराती लैंग्वेज को और प्रमोट किया जाए और अपनी जो लोग और भी है आपको देखकर इंस्पायर हो? हाँ, जो मैंने बुक गुजराती में लिखी उसका रीजन यही है कि हमको सबसे ज्यादा अच्छे थॉट्स सर अपनी मातृभाषा में आते हैं। इसीलिए मैंने उसको गुजराती में लिखा है। और अभी बहुत सारे लोग गुजराती मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं और गुजराती को भूल रहे हैं। इसीलिए गुजराती साहित्य में कुछ अपना योगदान दे सकूं, इसलिए मैंने पूरी बुक गुजराती में लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना अपना शहर के साथ आ रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ एक। तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और मैं जानना चाह रहा हूँ, चलिए आप अपनी बुक के बारे में जो भी समरी है, जो आप आपने कामरंग आपके लिए क्या क्या मीनिंग करता है, उसको अपने शब्दों में गुजराती लैंग्वेज में बताइए, गुजराती में। क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए कनेक्टेड रहेगी, राइट? हाँ वो बहुत ही अच्छा रहेगा। શ્યામરંગ એક બહુ જ સરસ મારું પ્રિય પુસ્તક છે અને એમાં મેં મારા દિલથી એમાં જે બી શબ્દો લખ્યા છે પૂરા દિલથી લખ્યા છે અને શ્યામરંગ એ અવિસ્મરણીય છે મારી માટે। बहुत बढ़िया, समझ में आया। बहुत अच्छा आपको होता है ना कि आती है आप समय गुजराती? के साथ साथ पाएंगे। देखो थोड़ा मुझे, थोड़ा। मैं दो महीने से गुजरात में, और मैं 14 साल से गुजरात के बॉर्डर पे हूँ, तो मुझे इतना तो पता चल जाता है कि मुझे समझ में आ अच्छा रहा है, है। होता है ना कि मुझे भी अच्छा लगा, पर हाँ पाएंगे, बट कोई इशू नहीं है। सो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि आप अपनी लैंग्वेज की अगर जब आपको बोला जाए ना, आप गुजराती में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो श्याम रंग बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेस करा है, राइट? सही बात है, इसीलिए। तो अब हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, अपने थॉट्स प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से श्याम रंग का जो आपने जिस तरीके से उसको फॉर्मेट किया, उसको लिखा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी ऑडियंस को, और खासकर आपकी ऑडियंस को, और जो हमारी ऑडियंस है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर बुक लॉन्च। बहुत सारी चीजें भी आने वाली है। हम चाहेंगे कि बुक्स हम ऑफलाइन अवेलेबल करवाए, अहमदाबाद में भी अगर कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, तो लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल फॉर ऑफलाइन इवेंट्स। तो नाउ लेट me wrap up from my end. Over to you, and keep
थैंक यू सचिन भाई। मुझे आवाज आ रही जी। मैं आप यही जानना चाहेंगे कि आपका जो संबंध की पूरी जनरी जो आपका पूरा सफर रहा जर्नी है वो कैसा रहा है? मतलब किसी का आप बहुत लोगों ने आपकी मदद की होगी, अलग अलग लोग आपसे आपकी किताब के लिए वो आ रहे होंगे, तो उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संबंध के साथ मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। अभी जुलाई में 1 आध साल खत्म होने आएगा उस जर्नी को। और मेरी बेसिकली जो भी कांटेक्ट हुए वो सचिन भाई से ही हुए। तो बाकी टीम मेंबर का मेरे से कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। सचिन भाई है सिंगल पर्सन कांटेक्ट, तो बहुत ही अच्छा रहा है और वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया सफर रही है। बाकी अगर की आप अपनी टीम आपके सामने है और हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। अभी लॉन्च भी होगा, तो लॉन्च के बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे? आपका ये पूरा सफर एक खत्म होने जा रहा है और एक नई पड़ाव पे होने जा रहा है, तो आप उन ऑथर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो एक दिन पब्लिश होने का सपना देखते हैं? उनको कुछ थोड़े मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो भी एक दिन पब्लिश करें अपनी कुछ रचनाएं? हाँ, जो भी थॉट्स मन में आते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। और जो भी करने की इच्छा हो, जो भी अपना ख्वाब हो वो पूरा करना चाहिए। उसके लिए मेहनत लगती है, मेहनत करो तो वो 110% कंप्लीट होता है। तो जो भी लोग लिखने का सोच रहे, बुक पब्लिश करने का सोच रहे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी अभी अवेलेबल है ऑनलाइन, पहले जैसा नहीं है। मुझे ऑनलाइन ही संबंध का कांटेक्ट हुआ है और मैंने बुक पब्लिश की है। तो जो भी लोग करना चाहते हैं वो करें और अपना सपना साकार करें। थैंक यू। है। हाँ, आपने मेरा ठीक आखिरी कही यहाँ पर। सवाल ये सर सर आप कुछ कह रहे हैं? आप मैं कहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने एक चीज कही जसवंत जी की सम्मान पब्लिकेशन से पिछले 1.5 साल से आप एंड आई वाज जिसे आप जानते हैं, तो प्लीज मीट माय टीम। जो ओशन है वो आपके बुक का फुल कवर उन्होंने बनाया है। मैन्युस्क्रिप्ट में भी उनके जो हमारी बाकी बुक्स के मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी उन्होंने बनाई है। एंड शी इज आवर सेकंड मैनेजमेंट लीड फॉर फॉर आवर मैन्युस्क्रिप्ट, फॉर आवर कवर, फॉर आवर डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट। सो प्लीज ज्यादा लेट हो गया है, पर हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम। सेकंड वन, माजिया जो हमारे होस्ट है, सीधा फ्रंट एंड जो आपके बुक मैनेजमेंट का जो भी लॉन्च इवेंट्स के लिए जब आपको लॉन्च होने वाली है ना, तब जो पर्सन सामने है हमारे पास वो ये है। तो समवन इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट माय टीम। ये एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरी टीम को बनता है। थैंक यू सर। आवाज आई? थैंक यू सर। थैंक यू टू संबंध टीम, जो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे उन सबको थैंक यू, और आप सभी का थैंक यू। थैंक यू सर। सो थैंक यू। यहाँ पे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हम आपकी आपकी किताब लॉन्च होने के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है वो बहुत अच्छी कामयाब किताब के रूप में सबके सामने आएगी। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। Okay. So I think we should wrap this session. हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। यस, एंड थैंक यू everyone for watching this live, and stay tuned for the next live. Okay. See you again. Bye bye.